What was the last thing? है ना? So what happened? See, this time was the time of hello, good afternoon. So this time was actually the time of Cold War. Okay, so 1979 was the time of Cold War, and during this time, every like both of the poles, that was the Western pole as well as the आपका Eastern pole, जो कि आपका communist bloc या socialist bloc था. So they both were trying to spread their regional influence, है ना? So they both were trying that their ideology, that is either capitalism or socialism, that must spread to those countries. Okay, and Afghanistan is very close to Russia. Okay, so USSR at that time, because USSR was even like the other Central Asian countries that are close to Afghanistan, those were part of USSR only, and that is the main reason why Afghanistan was very close to USSR. And to spread its influence in Afghanistan, and for many other reasons also, USSR directly militarily invaded Afghanistan in 1979. Okay, so write that thing. USSR invaded Afghanistan in 1979 to support the communist PDPA. To support the communist PDPA. तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान लिख सकते हो इसको, है ना? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान. So they to support that party to come to power, so that they wanted that in Afghanistan also there must be a socialist government, a communist government, right? But ultimately, what was India's stance during this? So India was obviously, a part of non-alignment movement. If India would have entered into this politics that was going on in Afghanistan during that time, so India would have officially been the part of this Cold War politics. But see, this bloc, because after 1971, that we were moreover inclined towards USSR, so we did not even join the global condemnation of this particular invasion done by USSR. We did not join to openly condemn this particular act. So the policy or the diplomacy that was adopted by India during this particular point of time is often called as the quiet diplomacy. Okay, what is it called as? It is called as quiet diplomacy. Okay, so we wanted to balance. Okay, and this balancing task was not at all an easy task. It was a very difficult task. So you write this thing. When this invasion happened, India was a proponent of non-alignment movement. India was a proponent of non-alignment movement, है ना? India was a proponent of and found herself to be located at a tough spot. To be located at a tough spot, है ना? हमने खुद को, दीपांशु, हर्षिका, विष्णु, वीडियो ऑन किया करो. टर्न ऑन योर वीडियो ऑन करो जल्दी. ये कोई बात नहीं है, चुपचाप मस्त लेट के पढ़ते हो. वीडियो ऑन करो. देखो आकांक्षा जो है कितना बढ़िया से एकदम वीडियो ऑन करके एकदम ईयरफोन हेडफोन लगा के और मस्त एकदम देखो लेक्चर देखते हैं, है ना? चलो अब तो देखो ऐसे लिखो इसमें. नेक्स्ट पॉइंट, India did not officially condemn the Soviet invasion. India did not officially condemn the Soviet invasion.
and adopted a policy of and adopted the policy of क्वाइट डिप्लोमेसी, है ना। हमने कौन सी पॉलिसी अपनाई? अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ क्वाइट डिप्लोमेसी। ओके, हमने क्वाइट डिप्लोमेसी अपनाया, है ना। तो अब देखो इसमें लिखो, दिस वाज पार्टली ड्यू टू इंडियाज close security ties with the USSR. This was partly due to India's close security ties with USSR and a desire to prevent the total encirclement of the region and to prevent the total encirclement of the region by US, Pakistan and China ties. क्योंकि हमें पता था कि जी अगर यहाँ पर भी जो है हम यूएसएसआर को कंडेम कर देंगे तो उससे क्या होगा, यूएसएसआर को तुम कंडेम करोगे बट द प्रॉब्लम वुड बी कि भाई यूएसएसआर विल देन गो अवे फ्रॉम इंडिया and then it will obviously, like, we will not be having any balancing country there, है ना, so will not be left with any such. तो ऐसे next point लिखो, India's direct engagement with the Afghan people drifted. India's direct engagement with the Afghan people drifted during this decade as the country became the central theater for Cold War proxy battles. Cold War proxy battles. ठीक है? Just coming in a second. एग्जामिनर को ट्रबल ना हो ये इंश्योर करना, चेक करने वाले को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो राइट, तो अभी आगे लिख दो, एक हेडिंग डालो, रेसिस्टेंस अगेंस्ट द तालिबान। रेसिस्टेंस अगेंस्ट द तालिबान, ठीक है। अभी देखो यहाँ क्या हुआ कि ये पॉइंट समझो, Your voice is very low now. Hello. My voice is very low. No, it's audible, but it's very low. Is it okay now? Is it okay now? Yes, sir, it's okay. आकांक्षा एक बार चेक करो जरा अपना ईयरफोन, वो हेडफोन की बैटरी, एक बार हेडफोन की बैटरी चेक करो। Let me check once. सॉरी, मैंने सुना नहीं क्या कहा।
एक बार करो, देखो एक बार चेक करो, फिर बताओ मेरे को। देखो प्रॉक्सी वॉर क्या होता है? वन इज द डायरेक्ट वॉर, ठीक है? नहीं, अगर मैं, इफ देर इज वन स्टेट, द स्टेट themselves fight, then that's the direct war. But if state uses a particular group and arm them, train them, and then use that group against the another country, that's proxy war. What Pakistan do in Kashmir, they train the youth, they send the youth to basically spread that insurgency, है ना? So they don't come directly, but they send other groups, है ना? So that is called as proxy war. Okay. Here now proxy war started. You know that in Afghanistan, already what happened in Afghanistan, already there was now home. There was USSR who has already invaded. USSR was a socialist country. USSR was a socialist country, right? Now here US did not wanted to directly engage in war with USSR. Okay. So it basically started proxy war against USSR's invasion in Afghanistan. So USA, CIA, even Saudi Arabia who was exporting Wahhabism, okay. So and even Pakistan, they provided funding to the Mujahideens. Okay, they provided. So today's Taliban is basically, I would say, the creation of US only. So they funded the Mujahideens to fight against the USSR's invasion in Afghanistan. Okay, so they started funding the Mujahideens. And now लिख लो इस बात को, when the पहले ये वाली लाइन लिखो, चलो when the छोड़ो, ये प्रॉक्सी वॉर करके लिखो, द यूएस ब्रैकेट में CIA, Saudi Arabia and Pakistan started funding the Mujahideens. Started funding the Mujahideens. Okay. आकांक्षा आप सही है ना? Started funding the Mujahideens. तो अब देखो, लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट. When the Taliban took power in 1996, when the Taliban took power in 1996, अभी देखो 1996 तक तो हम आ गए, बट ये भी और एक बात समझो. Now what happened in 1989? Now US and Saudi and Pakistan trained this Mujahideen, है ना? Now they rose to well power. They had arms, they had proper established system of organization and everything. Now what happened in 1989? Soviet withdrew. There was a Geneva Accord that was signed. So now under the Geneva Accord, Soviet withdrew from Afghanistan, finding it very difficult to establish the socialist influence in Afghanistan, because they were not able to establish their rule, the socialist rule in Afghanistan. So they withdrew from Afghanistan. Now after withdrawing their forces from Afghanistan, now there was no actual on ground real political structure left in Afghanistan. There was no structure, no power dynamic, no power groups that were actually ruling Afghanistan during that time. Okay. Now, due to this particular void that existed, now ultimately what happened in 1996, Taliban came to power. Okay. So after the withdrawal of the Soviet, they left a fractured state in Afghanistan. Okay. Now, by 1996, the Taliban, which was originating from the Deobandi madrasas and which was backed by Pakistan, this Taliban now finally captured Kabul. It established a regime that provides safe haven to the foreign fighters, eventually coalescing into Al-Qaeda. तो यही वो ग्रुप है जो अल्टीमेटली जो तालिबान बना. तालिबान इमर्ज हुआ था देवबंदी सेक्ट से. देवबंद इज नियर सहारनपुर. यहाँ पर सहारनपुर के पास में है देवबंद. फ्रॉम हियर a Deobandi sect started. Okay, now this was basically the Deobandi sect only who was started. So this Taliban started from madrasas.
तालिबान मीन्स तालीम, तालीम विच इज गिवन टू द बच्चे है ना, स्टूडेंट्स, तो तालीम जो दी जाती है, सो तालिबान, इट वाज बेसिकली अ मदरसा स्टार्टेड ग्रुप which was backed by Pakistan. Now it got its complete influence in Afghanistan in 1996. It formed its government also in Afghanistan. Okay, so right, when the Taliban took power in 1996, bracket में backed by Pakistan, backed by Pakistan, India viewed them as a security threat due to extremist ideology. India viewed them as a security threat due to its extremist ideology and ties to anti-India terror groups. And ties to anti-India terror groups. And to anti-India terror groups. Okay, and ties to anti-India terror groups. ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इंडिया along with Russia and Iran supported the United Islamic Front, UIF, for the salvation of Afghanistan, in bracket right, led by Ahmad Shah. ईरान, ईरान, ठीक है, Along with Russia and Iran supported the United Islamic Front, supported the United Islamic Front for the salvation of Afghanistan, for the salvation of Afghanistan. Okay, next point, right? India provided logistical, medical, and financial aid. India provided logistical, medical, and financial aid financial and medical aid to the Northern Alliance, in bracket right, UIF SA, in bracket right, UIF SA, और उसको अंडरलाइन कर लो, यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट फॉर सेल्वेशन ऑफ अफगानिस्तान, वो एक फ्रंट है, वो है ना, UIFSA, फाइनेंशियल एड टू UIFSA फ्रॉम बेसिस इन तजिकिस्तान. अब हमने क्या स्टार्ट किया, वी प्रोवाइडेड देम सपोर्ट सो दैट वी वांटेड दैट दिस नॉर्दर्न अलायंस मस्ट कम टू पावर. इसको UIFSA को ही कहा जाता है नॉर्दर्न अलायंस. We wanted this Northern Alliance to come to power so as to stabilize the situation in Afghanistan, which was already very depreciating. Okay, now came the era that is from 2001 to 2021. That is often called as the era of reconstruction in Afghanistan. Now things started getting reconstructed. थोड़ा अभी क्या हुआ था actually, in 2001 there happened 9/11, है ना. So 9/11 happened. Now 9/11 क्या था, 9/11 basically what happens is ना, this 9/11 was done by this Al-Qaeda, है ना, इनका था ये किया हुआ. अभी this was a attack on WTC पेंटागन बिल्डिंग इन अमेरिका. ठीक है, इन्होंने जो है वो 100 माले की बिल्डिंग उड़ा दी थी. ठीक है, Laden was the leading person in this particular terror attack. So after this terror attack,
America launched a mission that is called as War on Terror. Okay, they started this War on Terror. As a mission under War on Terror, they started eliminating all these groups. Okay, so they started eliminating now, but USA also had a very big fault in this. USA differentiated between two types of Taliban. One is good Taliban, one is bad Taliban. See, terrorism is terrorism. Why to differentiate between terrorism and good Taliban or bad Taliban? But they differentiated it. They wanted that that Taliban group that is supporting USA, that is good Taliban, but which is not supporting USA and basically doing terror activities that attacked on USA, that is good Taliban. That is bad Taliban, है ना? And बाकी rest which is supporting USA, that is good Taliban. ठीक है? So now they did this mistake, but now what happened in 2001? There happened a Bonn conference, and India emerged as the largest regional donor to Afghanistan. We wanted to reconstruct the entire Afghanistan. So ऐसे लिख लो, the era of reconstruction. Era of reconstruction, है ना? तो इसमें ऐसा लिखो कि post 9/11 and the Bonn conference, post 9/11 and the Bonn conference, bracket में 2001, India emerged as the largest regional donor to Afghanistan. India emerged as the largest regional donor to Afghanistan. Okay. And the next point, right? India focused on hearts and minds. India focused on hearts and minds through developmental aid rather than through developmental aid rather than rather than military boots on the ground. तो देखो तीन मेजर प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया ने अफगानिस्तान में किए थे. एक तो है सलमा डैम जो कि हमने बनाया था वहां पे, जिसको बोलते हैं इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम. तो ऐसे लिख लो, की प्रोजेक्ट्स हेडिंग डाल के नंबर 1 की प्रोजेक्ट लिखो. नंबर 1 की प्रोजेक्ट लिखो, सलमा डैम, SALMA, सलमा डैम. सलमा डैम. तो इसमें लिख लो इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम. ठीक है, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम. दूसरा लिखो अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग इन काबुल. अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग इन काबुल. सर सेकेंड वन कैन डू. सेकेंड वाला है अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग इन काबुल. और थर्ड है जरंज दिलाराम हाईवे. जरंज दिलाराम हाईवे. इसको अभी दो पार्ट और में हम पढ़ेंगे. ठीक है, दो पार्ट और में कैसे? द फर्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट पार्ट बेसिकली विच वी आर गोइंग टू नाउ स्टार्ट is the Indian interest and engagement in Afghanistan. Like what India, like how, yeah, in what ways Afghanistan is important for India. ठीक है, पहला तो हम ये देखेंगे. तो इसी में आप बेशक पेज चेंज करो या नहीं करो, बट एक मेजर हेडिंग डाल दो यहाँ पे. ठीक है, इंडियन इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट इन अफगानिस्तान.
Indian interest and engagement in Afghanistan. Now see, in Afghanistan, what happens is Pakistan always focuses or tries its best that they install a puppet regime in Afghanistan. Pakistan always wanted and tried all its, like, has adopted all the measures to install any puppet regime there. Okay, but what we have done is we have always tried to resist Pakistan in doing so. We have always tried that Pakistan must not do anything. It must not, basically, if it will install any puppet regime in Afghanistan, then that regime will definitely act against India. So we have always tried. So write the first point, core strategic interest, right? Core strategic interest. बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान में जो है प्रो इंडियन सेंटिमेंट्स, ठीक है। ऐसे लिखो, इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन अफगानिस्तान, India's involvement in Afghanistan is not just developmental, is not just developmental. Is not just developmental, right? It is vital pillar for its national security architecture. It's a vital pillar for its national security architecture. ठीक है, इसमें फर्स्ट लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसमें, ठीक है, राइट। Islamabad seeks a puppet regime. Islamabad seeks a puppet regime. ठीक है, इस्लामाबाद को ये एक puppet regime है ना, इस्लामाबाद seeks a puppet regime in Kabul to provide strategic depth, in Kabul to provide strategic depth in case of war with India, in case of war with India. ठीक है, इंडिया के साथ वॉर के केस पे होनी चाहिए अफगानिस्तान, so they want to install a puppet regime. Next point लिखो, In Kabul to provide provide strategic depth in case of war with India. Strategic depth in case of war with India. ठीक है, अभी नेक्स्ट इसमें लिखो, इंडियाज रिस्पॉन्स is that India aim for an independent and sovereign Afghanistan. India aim for an independent and sovereign Afghanistan that does not allow its territory, that does not allow its territory to be used as a proxy base by Pakistani-led terrorist groups. ठीक है, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि पाकिस्तान is using terrorist groups and perpetrating it into Afghanistan and then it is being used against India, है ना? We want that Afghanistan must be independent and a sovereign nation, है ना? So अब अगला पॉइंट लिखो, this creates a classic zero sum game. देखो ये जीरो सम गेम कैसे है, पाकिस्तान जो है ये परसीव करता है कि अगर इंडिया जो है कांधार में प्रेजेंट रहा तो इंडिया उसको अपनी तरफ से भी और ऊपर से भी, ऐसे इंडिया बीच, यहाँ पाकिस्तान यहाँ अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया इज प्रेजेंट इन अफगानिस्तान, तो यहाँ इंडिया और यहाँ भी इंडिया अगर रहेगा तो इसको एनसर्कल कर लेगा दोनों तरफ से, है ना। बट
नाउ ऑन द अदर साइड इंडिया क्या बोलता है कि वी हैव अ जीरो स्पिल ओवर फॉर एनी काइंड ऑफ रेडिकलिज्म, ठीक है, हम जो है रेडिकलिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, वी से कि भाई कुछ भी हो जाए हम हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे बट रेडिकलिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे लिखो इस बात को, पाकिस्तान परसीव्स एनी इंडियन प्रेजेंस, पाकिस्तान परसीव्स एनी इंडियन प्रेजेंस as an attempt to encircle them or support Baloch insurgents or support Baloch insurgents. Encircle, क्या बताया मैंने, encircle them or support Baloch insurgents. ठीक है, अभी फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंडिया एम फॉर अ जीरो स्पिल ओवर ऑफ रेडिकलिज्म, ठीक है। अभी देखो मेरी बात सुनो, इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, अफगानिस्तान का इंडिया के लिए, एक मैं आपको एक दिखाता हूँ, देखो एक ना सब हेडिंग डालना, अभी रुको पहले समझो इस बात को। सो हियर इज द कांडला पोर्ट एंड हियर इज द मुंबई पोर्ट। आपको पता है ये बीच में जितने भी देश हैं, दीज आर ऑल रिसोर्स रिच कंट्रीज, ओके, वेरी रिसोर्स रिच कंट्री। ईरान के इधर पर तो अलग रूट हो गया, बट यहां से चाबहार पोर्ट एंड चाबहार पोर्ट से जो है आपका जाहिदान रेल लिंक है, ये भी इसी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। यहां से सीधा एक शॉर्टकट लेके, यहां से हाईवे पकड़ के, यहां से पहले ट्रेन से जो है यहाँ, तो यहां से लेके जरंज, और जरंज से सीधा अफगानिस्तान के होते हुए वी गेट एक्सेस टू द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी बहुत है अफगानिस्तान में, समझ रहे हो बात। तो वी हैव अ वेरी हाई इकोनॉमिक इंटरेस्ट बिकॉज यहाँ से हमारा एक्सेस अभी ब्लॉक्ड है ना, ये दिस वन, ये अभी हमारा एक्सेस नहीं है। रीजन क्या है आपको पता है ये बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा जो है डी फैक्टो कंट्रोल नहीं है। So that is the main reason why we cannot go directly from here and then to Central Asia, but we can go like this, है ना। तो इसीलिए ऐसा लिखो, इसमें एक सब हेडिंग डाल दो इसी पर्टिकुलर, आपका क्या हेडिंग डाली थी इंडिया इंटरेस्ट में ना, इकोनॉमिक एंड रीजनल आउटरीच लिख दो, इकोनॉमिक एंड रीजनल आउटरीच। ठीक है, इसमें लिखो, अफगानिस्तान इज द लैंड ब्रिज कनेक्टिंग साउथ एशिया, Afghanistan is a land bridge connecting South Asia to the resource-rich Central Asian republics. To the resource-rich Central Asian republics. Okay. Next point लिखो,
Access to Central Asian gases. Access to Central Asian gases. In bracket, right? In bracket, right? तापी पाइपलाइन. तापी पाइपलाइन. इसमें लिख दो. इसमें लिख लो. तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, है ना. ये भी मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखो, इसके लिए भी जो है अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है. So here it is Fasilka in India, in JNK. ठीक है. From Fasilka, what we want is ना, we have proposed. This is not yet fully implemented, obviously. अभी implement नहीं हुआ है because of the Pakistani obvious Pakistani obstacle to this. Okay. Now what we have proposed is, and कुछ project इसका चला भी है, ये start भी हुआ है, अभी ongoing है ये. So what we have started is we are constructing from this Quetta, here it's Quetta in Pakistan, from Pakistan crossing on to Afghanistan and going on to Turkmenistan. And when we, so if there will be a direct pipeline in this region ना, तो इस direct pipeline से क्या होगा कि इस direct pipeline से हमें कोई वेट नहीं, कोई ऑब्स्टिकल नहीं, वॉर हो रही है, कुछ हो रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं until and unless वॉर डायरेक्टली पाकिस्तान से ना हो. In that case, they can stop the supply, but otherwise, this is an effort to ease our tensions and also an effort to basically strengthen our ties with the Central Asian republics. यहाँ से we will directly be importing the gases. तो अब फिर लोग बोलते हैं कि भाई पीओके के लिए क्या हम जान दे देंगे. अरे पीओके के लिए जान क्यों नहीं दे देंगे. पीओके सोचो ना कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए. अगर पीओके अपने पास अगर हो अभी डी फैक्टो कंट्रोल में, तो ये जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान के पास जाने की, हम डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ में जो है वो कनेक्टिविटी जोड़ी. बात समझ रहे हो. तापी के फुल इंप्लीमेंटेशन में भी पाकिस्तान इज अ बिग ऑब्स्टिकल. तो लेकिन अफगानिस्तान, बिकॉज वी आर स्टडिंग इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन, सो इन दैट अफगानिस्तान का इंपॉर्टेंस समझ रहे हो आप. सेंट्रल एशिया में अगर आपको ईरान से होकर भी जाना है तो भी अफगानिस्तान जरूरी है, और अगर आपको जो है डायरेक्ट क्वेटा होकर के जो है जाना है तो भी अफगानिस्तान जरूरी है. ठीक है. राइट दिस थिंग. क्या लिखा अभी आपने. हाँ, तापी. तापी लिख दिया ना, ब्रैकेट क्लोज. एंड मिनरल इज क्रिटिकल फॉर इंडियाज $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक एम्बिशंस. $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए बहुत जरूरी है. और ऐसे लिंक किया करो करंट अफेयर से. ठीक है. दिस इज नेवर नोवेयर रिटन, बट जस्ट लिंक इट. आई हैव लिंक्ड दिस, है ना, ऐसे लिखना आप भी आंसर में. ठीक है. एंड इज क्रिटिकल फॉर इंडियाज $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक एम्बिशंस. ऐसे नेक्स्ट पॉइंट लिखो. By acting as a regional security provider and major donor, regional security provider and a major donor,
India asserts its status as a leading power in global south. India asserts its status as a leading power in global south. ठीक है, तो अभी एक इसी में एक जैसे इकोनॉमिक वाली हेडिंग डाली थी ना, अभी ऐसे ही एक और हेडिंग डालो, इंडियाज एंगेजमेंट पोस्ट 2001, 2001 के बाद क्या हुआ है। ठीक है, लिखो, इंडिया हैज प्लेस्ड ओवर $3 billion इन एड, है ना, लाइन ऑफ क्रेडिट नहीं, एड। इंडिया हैज प्लेस्ड ओवर $3 billion इन एड, making it the largest regional donor. Largest Once again, हाँ can you repeat once again? India has pledged. हाँ, pledged over $3 billion in aid, making it the largest regional donor. ठीक है, जिससे हम जो है लार्जेस्ट डोनर बन रहे हैं। ऑलराइट, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अनलाइक पाकिस्तान दैट लार्जली फोकसेस ऑन पश्तून ग्रुप्स, इंडिया engaged with Tajiks, Hazaras and Uzbeks to get a broad Afghan support. To get a broad Afghan support. Next point also you can write, Indian cinemas acts as a cultural bridge. Indian cinemas acts as a cultural bridge. इंडियन सिनेमा में क्या दिखाते हैं कि द कैरेक्टर्स आर लार्जर देन द रियल लाइफ, है ना, कुछ बहुत बलशाली, है ना, so they resonate with that. When we show the characters like they are seeking for justice, they want justice, they want just things, now the people there resonates with them, है ना, they want, अरे ये तो एकदम सही कह रहा है, more like heart to heart relation develops, है ना। हंस रहे हो तुम, देखो तुम्हें पता नहीं है ना अभी कितना लोग परेशान है वहां पे। क्या लिखा तुमने अभी? हाँ लिखो, इट्स लार्जर देन लाइफ हीरो नैरेटिव्स, इट्स लार्जर देन लाइफ हीरो नैरेटिव्स, resonate with the society, resonate with the society seeking justice after decades of war. ठीक है, अब देखो, अब हम देखेंगे, अब एक मेन हेडिंग डाल दो, इंडियाज अब देखो कुछ और चीजें हैं वो सब आपको वही अपने करंट अफेयर से ही ऐड करनी होंगी, जैसे कोई एयर फ्राइट कॉरिडोर अगर चल रहा है तो ठीक है, या फिर जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह का कितना जो है वो बाजार चला है, मतलब मार्केट जो है वो चला है,
ड्राई फ्रूट का कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो सब कमर्शियल रिलेशंस है ना, कि कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है, कहीं कुछ अगर करंट अफेयर में दिखता है, या जैसे आप जो भी मैगजीन सब पढ़ते हो उन सभी में हमेशा ये एक सेक्शन रहता है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो उन मैगजीन्स के इस्तेमाल से जो है यू कैन ऑप्ट फॉर दिस, ठीक है, आप जो है यहाँ पर वो चीजों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी एक काम करो, नाउ कम टू दिस, आप हेडिंग डाल दो मेन, इंडियाज पॉलिसी ऑप्शंस एंड रीसेंट रिकैलिब्रेशंस। अपने पास में कितने पॉलिसी ऑप्शन है ना, एंड रीसेंट रिकैलिब्रेशन। देखो देखो तीन पॉलिसीज होती हैं मेजर, ठीक है। तो विथ रिगार्ड्स टू द, हम जैसे इंडिया हिस्टोरिकली नेविगेटेड द अफगान थिएटर बाय रिजेक्टिंग मिलिट्री इंटरवेंशन, है ना। देखो देशों को लेकर के आपने हमेशा सुना होगा कि कुछ पॉलिसीज द कंट्रीज कैन अडॉप्ट, स्पेशली द कंट्रीज हु आर इन नेबर, है ना, तो वो दूसरे देशों के लिए कुछ पॉलिसीज अपना सकते हैं। वन ऑफ द पॉलिसी कैन बी द पॉलिसी ऑफ फॉरवर्ड पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो फॉरवर्ड पॉलिसी में क्या होता है, ये पॉलिसी यूजुअली ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनाया करती थी, जिसमें मेन जो अप्रोच होती है इसमें वो ये होती है कि आप अपने मिलिट्री बूट्स को वहां लेके जाओगे, मतलब आप अपने मिलिट्री पर्सनल को डायरेक्टली पोस्ट करोगे आप सामने वाले फॉरवर्ड जगहों पर, जहां जहां पर भी आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो और बेसिकली टू एक्सर्ट योर इन्फ्लुएंस इन दैट रीजन, जो है आप अपने डायरेक्टली मिलिट्री पर्सनल्स को भेजोगे टू स्टेप अप द मिलिट्री बूट्स, योर मिलिट्री बूट्स इन दैट रीजन इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड पॉलिसी, ओके। इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि रैशनल क्या है इस पर्टिकुलर पॉलिसी का, रिजेक्टेड टू स्ट्रिक्टली अवॉइड, हमने रिजेक्ट, इसका रैशनल देखो वैसे क्या होता है कि भाई आप डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करोगे, आप डायरेक्टली जाओगे और वहां की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करोगे। हमने इस पॉलिसी को रिजेक्ट किया, वाई वी रिजेक्टेड दिस पर्टिकुलर पॉलिसी, क्योंकि हमें क्या था कि हम डायरेक्टली अपने आप को जो है वो एज अ मिलिट्री ऑक्यूपायर नहीं दिखाना चाहते थे, है ना। इससे क्या होता है, आप मिलिटरीली तो स्ट्रांग हो जाते हो, लेकिन आपका लोगों के माइंडसेट में और बेसिकली फर्दर आने वाली गवर्नमेंट्स के माइंड में आप एंटी हो जाते हो, आप गलत रहते हो हमेशा, ठीक है। ये बेसिकली हाँ नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है आपका, है ना। तो हमने जो है ऐसा कुछ नहीं रखा, हाँ थोड़ा बहुत डिफेंस एंगेजमेंट रखे, बट दैट डजंट मींस कि हमने अपने डायरेक्टली पर्सनल्स को वहां पर भेजा, स्टेशन किया, नहीं। अच्छा एक होता है मास्टरली इनएक्टिविटी। देखो मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी जो है वो क्या करते थे, ये भी ब्रिटिशर्स के टाइम की पॉलिसी थी, और इस पॉलिसी में क्या किया गया था अफगानिस्तान के साथ में, चुप रहा, है ना, चुप रहे, द सरकार, द गवर्नमेंट, द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट रिमेन्ड साइलेंट, they waited for the crisis, the internal crisis that was going on inside the particular country to explode, ताकि वो अपने आप एक दिन एक्सप्लोड होंगे और अपने आप फिर उस समय हम इंटरवीन करें, ठीक है, मास्टरली इनएक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें वेटिंग फॉर इंटरनल क्राइसिस टू सेटल बिफोर एंगेजिंग, ठीक है, तो उस समय हम एंगेज करेंगे जिस समय हमें लगेगा, लेकिन अभी मास्टरली एक अच्छे प्लान के साथ में नो एक्टिविटी, ठीक है, तो उसमें कोई भी एक्टिविटी हम नहीं करेंगे, मास्टरली इनएक्टिविटी, इसको भी नहीं अपनाया, अवॉइड किया, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने। नो नेक्स्ट वाज द मिडिल पाथ। अब इन दोनों में देखो मिडिल पाथ क्या होता है कि आप जो है डिफेंस अग्रीमेंट करो, थोड़े बहुत कोऑपरेशन करो, थोड़ी बहुत हेल्प करो सामने वाले देश की, लेकिन साथ में मिलिट्री इंटरवेंशन की जगह आप इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ, आप वहां पे पार्लियामेंट बनाओ, आप वहां पे हॉस्पिटल बनाओ, आप वहां पे हाईवे बनाओ, ताकि वो देश डेवलप हो और ताकि आपके जो है वो इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़े आपका उस देश के साथ में, है ना। तो दिस वाज द मिडिल पाथ दैट वाज एक्चुअली अडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें सिविलियन इन्वेस्टमेंट किया गया और साथ में स्ट्रेटेजिक पेशेंस भी रखा गया, शांति भी बरती गई, ठीक है, कि रुको शांति बरतो, देखते हैं क्या हो रहा है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये पॉलिसी जो है हमने अपनाई, इसमें मेजर फोकस था पॉलिटिकल डायलॉग को बढ़ाने पे और एक्टिवली जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करने पे, ठीक है। तो लिख लो इसको। देखो फॉर डिकेड्स
India's Afghan policy, for decades, India's Afghan policy oscillated between the two extremes. Between the two extremes. Okay, between the two extremes. Ultimately settling on a unique middle path. और पहला पॉइंट लिखो फॉरवर्ड पॉलिसी, और फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग डालो फॉरवर्ड पॉलिसी एंड इन ब्रैकेट राइट रिजेक्टेड. रिजेक्टेड. ठीक है, इसमें लिखो India has consistently refused to station military boots. India has consistently refused to station our military boots on Afghan soil. On Afghan soil. While India provided military equipments, in bracket you can write Mi-24 helicopters, Mi-24 helicopters, bracket close, and training to Afghan national security forces. And training to Afghan national security forces. Full stop. या कॉमा डालो. It avoided direct military intervention to prevent from being viewed as an occupier. To prevent from being used as an occupier. ठीक है, we never wanted that our image, India's image in Afghanistan being portrayed as an occupier, है ना, हम नहीं चाहते थे ये चीज. ठीक है, अच्छा देखो बोलते हैं ना कि why we chose the policy of basically this middle path, है ना, हमने ये middle path की पॉलिसी को क्यों चूज किया. हमें बहुत गुस्सा तो आता था, we were very angry over the growing influence of Pakistan in Afghanistan, बट हमने फिर भी कभी ऐसा नहीं किया कि डायरेक्टली हमने 5,000, 4,000, 10,000 सोल्जर्स को जो है वो भेज दिया अफगानिस्तान में लड़ने के लिए फ्रॉम द पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस. नेवर. वी न्यू कि अलकायदा और तालिबान आर ऑपरेटिंग देयर एंड स्पॉन्सरिंग so many activities that are not in favor of India or going against India, but we still chose to, I would say, to remain silent. हमने गुस्सा नहीं दिखाया. देखो गुस्सा दिखाना हर जगह सही नहीं होता. हमने गुस्सा दिखाया लेकिन उस समय दिखाया जब हमें जरूरत पड़ी, है ना. तो हमने डिफेंस इक्विपमेंट्स भेजे, हमने ट्रेनिंग दी उनके आर्मी को, है ना, अफगानिस्तान की आर्मी को. हमने बहुत काम किए लेकिन हमने उस समय गुस्सा नहीं दिखाया जिस समय हमें लगता कि अगर हम गुस्सा दिखा देते तो उससे बात और बिगड़ जाती. ठीक है, तो अब लिखो इसमें सेकेंड पॉलिसी लिखो मास्टरली इनएक्टिविटी एंड इन ब्रैकेट राइट अवॉइडेड. मास्टरली इनएक्टिविटी अवॉइडेड. अच्छा हम एकदम चुप भी नहीं रहे, क्योंकि देखो एकदम चुप होना क्या सही होता है? क्या गुस्सा नहीं करना सही होता है? नहीं, देखो गुस्सा नहीं करना भी सही नहीं होता, गुस्सा करना भी चाहिए. क्या हमारा धर्म नहीं सिखाता हमें गुस्सा करना? बताओ. डू आवर रिलीजन टीचेस अस टू रिमेन ऑलवेज पीसफुल? नहीं, हमारा धर्म भी हमें सिखाता है. जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय उस सभा में खड़े लोगों को का गुस्सा ना करना क्या इतिहास में सही नजरों से देखा जाता है? और वही इंसिडेंट हमें बताता है कि जिस समय सोसाइटी में किसी भी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा हो तो उस समय गुस्सा करना जायज भी है.
है ना। कई ऐसे इंस्टेंस आते हैं जिस समय गुस्सा करना जायज भी होता है, तो हमने गुस्सा किया लेकिन कैलिब्रेटेड गुस्सा किया, है ना। तो इस मास्टरली इनएक्टिविटी को भी हमने नहीं चूज किया, हम चुप भी नहीं बैठे थे। ठीक है, तो लिखो इस बात को। अनलाइक द ब्रिटिश एरा, इंडिया चोज प्रोएक्टिव सिविलियन इन्वेस्टमेंट। इंडिया चोज प्रोएक्टिव सिविलियन इन्वेस्टमेंट्स। और फिर थर्ड अप्रोच लिखो, द मिडिल पाथ एंड इन ब्रैकेट राइट अडॉप्टेड। मिडिल पाथ अडॉप्टेड। हमने मिडिल पाथ को अडॉप्ट किया, ठीक है। सो राइट, अ मिक्स ऑफ डेवलपमेंटल असिस्टेंस एंड स्ट्रैटेजिक पेशेंस। डेवलपमेंटल असिस्टेंस। मेरी बॉटल तुम्हारी है, ये बॉटल छोटे बच्चों की नहीं लग रही है। बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनकी बॉटल होती है इतनी। बदलो इसको। वेटेड नहीं, तुम छोटी बॉटल लो लेकिन ऐसी मत लो, ये बच्चों वाली बॉटल लग रही है। नहीं अच्छी तो है, अच्छी तो बहुत है, लेकिन बच्चों के हाथ में अच्छी लगेगी। तुम बड़े हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, थोड़ी ऐसी लो एकदम। कोका कोला की बोतल ले लो, लेकिन दूसरी लो, ऐसे नहीं करो, ठीक है। चलो आगे देखो। अरे चुप हो जा। हाँ, तो आकांक्षा भी हंस रही है, देखो अभी कभी मिल जाएगी ना तो इससे पूछना फिर तू क्यों हंसी थी। क्या? आकांक्षा है ऑनलाइन स्टूडेंट है, तो ये भी हंस रही है पता है। अभी कभी अगर मिल जाए ना अकेले में, ठीक है, तब आकांक्षा को बताना कि तुम भी हंसी थी जब सर मुझे कुछ बोल रहे थे। नहीं आएगी आकांक्षा, दिल्ली नहीं आएगी अभी। नहीं आएगी, मना कर दिया। चलो लिखो इसमें। ठीक है, इंडिया फोकसेस ऑन पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट थ्रू डायलॉग्स। इंडिया फोकसेस ऑन पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट थ्रू डायलॉग्स while seeking US while seeking US and regional cooperation to stabilize the region. ठीक है, तो ये है। अभी देखो, इसी एंगेजमेंट की पॉलिसी के तहे क्या हुआ है कि जो अ, अफगानिस्तान में 2022 से ना तालिबान आ गए। पहले हमने क्या किया था कि पहले डेलिबरेटली वी वर रिजेक्टिंग एनी काइंड ऑफ engagement with Taliban, stating that it's a terrorist group. ठीक है, वी डिड नॉट रिकॉग्नाइज देम एज सच कि भाई नहीं हम नहीं मानते तुमको वहाँ, ठीक है। लेकिन फिर तालिबान क्या, पूरे वर्ल्ड ने यही किया कि सोचा कि तुम मानो या ना मानो तालिबान तो है, और नहीं एंगेज करोगे। क्या हुआ तुमको, क्या हुआ तुमको, क्या हुआ? आज बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हो गया? नहीं पढ़ाई की टेंशन चल रही है? नहीं लग रहे हो आज तुम, आज तुम थोड़े स्ट्रेस्ड लग रहे हो। कई बार हो जाता है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं। तो अब देखो, क्या थक गए हो क्या ज्यादा? कितनी क्लास हुई यहाँ सुबह से? एक ही, पहली है ये? तीन ना? हाँ वही, तुम्हारी क्लासेस भी तो बहुत हो जाती हैं। कितने घंटे पढ़ते हो तुम क्लास में? 4.5-5 घंटे लगातार है?
खाना पीना खाने का समय मिलता है ना सही से, खाना पीना नहीं छोड़ना है ना। क्लास के चक्कर में मेरी बात सुनो, बहुत नुकसान में आ जाओगे। खाना पीना लेकिन कभी नहीं छोड़ना, खाना पीना बढ़िया से अपना खाते रहो। वो कहाँ है, पता नहीं। चलो अब देखो, तो हमने यही किया कि भाई पहले रेड लाइन थी, फिर हम आ गए चलो कम्युनिकेट कर ही लेते हैं तालिबान से, जब वो है ही वहां पे, है ना, क्या करें। वैसे लिखो शिफ्ट टू प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट, ये थोड़ा नया अपडेट है, इसको ऐड कर लो, शिफ्ट टू प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट। शिफ्ट टू प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट, राइट। The return of Taliban in 2021, the return of Taliban in 2021 has forced a significant reorientation of India's people-centric policy. है ना, ऐसे लिखो इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, राइट। Historically, India refused to talk to Pakistan, to Taliban. Historically, India refused to talk to Taliban. हमने इंडिया पाकिस्तान कर लिया है क्या, नहीं किया है ना। रिफ्यूज टू टॉक टू तालिबान, ठीक है। सिंस 2022 इंडिया हैज अडॉप्टेड अ since 2022 India has adopted a pragmatic functional pragmatic functional engagement strategy. Pragmatic functional engagement strategy, interacting with the Taliban authorities without a formal political recognition. फॉर्मली अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन फिर भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, in 2022 the technical mission was initiated by India in Afghanistan. दो 2022 से 25 तक एम्बेसी रिलेशन नहीं था, ये टेक्निकल मिशन था, है ना, टू कोऑर्डिनेट ह्यूमैनिटेरियन एड। ठीक है, इसका काम था कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड हम दे रहे हैं उसको कोऑर्डिनेट करना, टू कोऑर्डिनेट ह्यूमैनिटेरियन एड। एंड दिस मिशन सर्व्ड एज अ लिसनिंग पोस्ट इन काबुल। दिस मिशन सर्व्ड एज अ लिसनिंग पोस्ट इन काबुल, ठीक है, लिसनिंग पोस्ट की तरह काबुल में इसने मिशन ने काम किया, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो, in October 2025 following a landmark visit by Taliban foreign minister, बताओ यार, तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर, तालिबान की पार्लियामेंट की फोटो देख भाई, तालिबान फॉरेन मिनिस्टर टू न्यू दिल्ली, India upgraded its mission to full-fledged embassy. And in January 2026, Taliban reciprocated by appointing their first charge d'affaires CDA. Their first charge d'affaires CDA
to the Afghan embassy in New Delhi. ठीक है, यही है आपका इंडिया अफगानिस्तान। कुछ अगर और रिसेंट इफ आई गेट समथिंग तो दैट आई विल टेल यू, ठीक है, तो वो देखते हैं, बट अदरवाइज इतना ही है अफगानिस्तान के में, ठीक है, क्योंकि देखो अभी तक कमर्शियल वाला बहुत इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ ट्रेड वाला इतना नहीं है, बट ये वाला है ज्यादा, है ना, थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह का ट्रेड तो होता है, बट दिस इज मेजर थिंग, ठीक है। एनीथिंग टू आस्क ऑनलाइन स्टूडेंट्स? टेल मी। Will कुछ be पूछना asking है? after studying this, like I need to study, then I will ask. हाँ हाँ पक्का, है ना, ठीक है, करते हैं फिर, ठीक है, अगली क्लास में कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।